our next chapter is current electricity. It is chapter 4. In this chapter we will study the charges in motion. At first, definition of current electricity. It is the branch of physics which deals with the charges in motion. That means फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को मोशन में कंसिडर करते हैं उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. और चार्ज कैरियर मीन in different material like solid, liquid and gases, and the current flows. So what are the charge carrier? How the charge moves? In solids, charge carriers are free electrons. Particularly solids में हम पढ़ेंगे metals को, कि metals में जब करंट फ्लो होता है तो चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन. इन लिक्विड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, लिक्विड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं. गैसेस में पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, और सेमीकंडक्टर्स में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट मीन व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू एनी वायर, the rate of flow of charge through any cross section of conductor is called electric current. That means rate of flow of charge मतलब पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. इसका सिंबल है I. Let us suppose Q charge is passed in T time through any cross section, then electric current is equals to Q upon T. So this is the formula for current. Current is equals to Q upon T, that is charge upon time. This is the basic formula for the current. Now next point is the SI unit of current is ampere, that is 1 ampere is equals to 1 coulomb upon 1 second. In CGS unit, current is measured in stat ampere. Stat ampere mean 1 stat coulomb upon 1 second. Now another word is current density. What is meant by current density? It is the ratio of current and area. That is, current per unit cross sectional area is called current density. It is denoted by capital J. So J is current density. It is a vector quantity. Its unit is ampere per meter square. And dimensional formula, ampere का dimensional formula, that is current का A होता है ampere. A मतलब ampere, L स्क्वायर बिकॉज पर मीटर स्क्वायर, तो अपॉन में L स्क्वायर आएगा, इसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक. नाउ व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एनी मटेरियल इज इंक्रीजेस above 0 Kelvin, the velocity of its atoms molecules is called thermal velocity. So the thermal velocity of electrons in metals is of the order of 10 to the power 5 meter per second. Now come to drift velocity. What is meant by drift velocity? Drift velocity is denoted by Vd. Drift velocity means it is the average velocity. It is the average velocity with which the free electron drifted or moved toward the positive end of conductor on application of potential difference at the end of conductor. It is denoted by Vd. Its value is of order of 10 to the power -4 to -5 meter per second. ठीक. नाउ फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अब हम फार्मूला डेरिव करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला का एक्सप्रेशन का कैसे हम डेरिवेशन करते हैं. लेट अस सी. देखिए, एक पी क्यू कंडक्टर है. दिस इज द कंडक्टर पी क्यू. At the ends of which a potential difference V is applied through a battery, due to which the electrons move from negative to positive end of the conductor with drift velocity Vt. So drift velocity is actually the average velocity with which the free electron drifted. मतलब different electrons की velocity को calculate करेंगे और उसका average ले लेंगे. That will be the drift velocity. So let us see how. हम ये कहेंगे कि एक पी क्यू कंडक्टर है, इसके एंड्स पर हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया. ठीक है.
और उसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन गया। तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अगर कंडक्टर के अनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो फोर्स हो जाएगा माइनस ई इंटू ई। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट। अब फोर्स पता लग गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन के मास को हम एम समझे तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, दैट इज माइनस ई अपॉन एम। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। अगर हम कहेंगे कंडक्टर का टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है, कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है, तो सब इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग इनिशियल वेलोसिटी है। मान लीजिए उनकी जो वेलोसिटी है अलग अलग u1, u2, u3 डैश 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 un, दैट इज डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज u है, u1, u2, u3, un एंड सो ऑन। ठीक। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाउ वन टाइम के बाद में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो फोर्स लगेगा, वेलोसिटी चेंज होगी। तो v1 इज इक्वल्स टू u, बिकॉज यूजिंग द न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सो v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस at। सिमिलरली फॉर द सेकंड इलेक्ट्रॉन v2 इज इक्वल्स टू u प्लस a टाउ 2। सिमिलर मैनर में हम लिख सकते हैं vn इज इक्वल्स टू un प्लस a टाउ n। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इन सब वेलोसिटी का एवरेज लेना, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ v1, v2, vn। दैट इज लेट अस राइट v1 की वैल्यू v2 की सब रख दीजिए, n से डिवाइड कर दीजिए, ठीक, लाइक दिस। अब हम यहाँ पर u1, u2, un स्प्लिटिंग जो टू टर्म u को सब एक साथ कंबाइंडली ले लिया, और टाउ 1, टाउ 2, टाउ n और a कॉमन आ गया, एक्सेलरेशन बाहर आ गया। अब हम जानते हैं कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो होती है, दैट इज u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n इज इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो होती है वैल्यू, क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जीरो समझते हैं। अब ये टाउ 1, टाउ 2, टाउ n अपॉन n को टाउ बोल दिया, वेयर टाउ इज कॉल्ड द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। सो इसको टाउ लिख दिया, तो वी डी इज इक्वल्स टू ए इंटू टाउ, और वी डी की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू रख दीजिए माइनस ई इंटू ई बाय एम इंटू टाउ। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे कैलकुलेट की जाती है भैया। नाउ अनदर डेरिवेशन इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वही पहले वाला डायग्राम में पी क्यू एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ एल है, इसके एंड्स पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिया, जिसके कारण इसमें I करंट फ्लो होने लग गया, और इलेक्ट्रॉन चलते हैं इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। इतनी सारी बातें। अब ये रिलेशन क्या है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी या करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा, E इज इक्वल्स टू V अपॉन L, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, कंडक्टर का लेंथ है L और एरिया है A, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू L, ठीक। अगर हम कहें कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज N, दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है N, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यूनिट वॉल्यूम में N है तो AL वॉल्यूम हो जाएगा कैपिटल N इज इक्वल टू NaL, ठीक है। तो टोटल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये होता है, अब कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू N इंटू ई, जो कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव होगा, ठीक। अब इसमें कैपिटल N की वैल्यू रख देंगे NaL इंटू ई, ये Q आ गया। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। देन टाइम टेकन, अब ये इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से और कंडक्टर की L लेंथ को क्रॉस करना है तो टाइम कितना लगेगा, टाउ टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये फार्मूला यूज़ कर लिया कि टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर L लेंथ ऑफ द कंडक्टर L अपॉन Vd, ठीक। अब ये टाइम मालूम पड़ गया, Q मालूम पड़ गया, तो करंट होता है Q अपॉन T। अब यहाँ Q की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, डिवाइडेड बाय T की वैल्यू, L कैंसिल हो गया, सो I इज इक्वल्स टू N, ये Vd।
ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो दैट इज जे करंट डेंसिटी, जे होता है करंट अपान एरिया। सो करंट की वैल्यू ये रख दीजिए, एन ई है वी डी अपान ए से ए कैंसल, तो जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। ये है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। दैट्स ऑल।